Morning class 6 students. Today we will be continuing our science class from chapter 2 and page number 14. 2.3 से valence diet से start करेंगे. The food we normally eat is in a day is our diet. जो हम normally एक दिन में खाते हैं वो हमारा diet कहलाते हैं. For growth and maintenance of good health, our diet should have all nutrients that our body need. A good diet, a good growth maintain करने के लिए हमें अच्छा diet की ज़रूरत है और वो भी nutritious, okay? In right quantities और सही वजन में सही मात्रा में. Not too much of one and not too little of the other. एक में ज़्यादा और एक में कम ऐसा नहीं. The diet should also contain a good amount of rice and water. Such a diet is called balanced diet. और इसी को कहलाते हैं balanced diet, okay? Balanced diet. Do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या आपको लगता है कि हर उम्र की लोगों को एक ही किस्म का डाइट चाहिए या सेम डाइट चाहिए? Do you also think that we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आपको लगता है कि जितना हमने काम किए हैं उसकी हिसाब से हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है? आप प्रिपेयर कर लीजिए. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ व्हाटएवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. जितना भी एक हफ्ते में खाए हैं वो चार्ट प्रिपेयर करिए और लिखते रहिए. चेक वेदर ऑल द nutrients mentioned are present in one or the other food item being eaten within a day or so. आप उसमें देखिए हर एक न्यूट्रिएंट का हर बार जब भी खाते हो एक दिन का या एक हफ्ते का उसमें है कि नहीं. Pulses, groundnut, soybean, sprouted seed, मूंग दाल या bengal gram इस इसका. And fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flour, misi roti, thapla, made from cereal and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food nutrients. तो इन सब चीज़ों को खाने में बैलेंस डाइट मिल जाते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स पूरी हो जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है. Eating the right kind of food is not enough. सही खाना भी मतलब सही नहीं है उतना. हाँ, और it should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. और उसको अच्छे से पकाना भी चाहिए ताकि उसमें से जो जितना भी गुण है वो घट ना जाए. Are you aware that some nutrient get lost in the process of cooking and preparation? क्या आपको पता है कि खाना पकाने और बनाने के बीच में ही जितना भी गुण होते हैं वो खो जाते हैं उसी में. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, यदि आपने वेजिटेबल्स या फ्रूट को काटने के बाद धोया, it may result in the loss of some vitamins. वैसे में अपने खाने का जो जितना भी गुण है वो हम खो सकते हैं. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals similarly. और ऐसे ही जब हम चमड़ी को निकाल देते हैं ना उसमें कुछ ज़रूरतमंद विटामिन्स और मिनरल्स उसमें भी होते हैं. Repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. और ऐसे ही जब हम चावल या कुछ खाने को बार बार धोने में उसमें जितना भी गुण है वो हम खो सकते हैं धोते वक्त. We also know that
Cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. और हमें ये भी पता है कि जब हम अच्छे से पका लें तो वो खाने में स्वादिष्ट और आसान भी होते हैं हजम करने में. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. और ऐसे ही पकाते वक्त भी हम कुछ nutrients हम खो सकते हैं. Some useful proteins and considerable amount of minerals are lost in if excess water is used during cooking and is then thrown away. और ऐसे भी होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं पकाते वक्त और पानी को फेंक देते हैं तो उसमें भी हम खो सकते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. और विटामिन सी जो होते हैं ना वो पकाते वक्त ही बहुत कुछ खो जाते हैं या फिर आसानी से चले जाते हैं. Would it not be essential to introduce some fruits and raw vegetables in our diet? तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि बिना पकाए कुछ खाया जाए? Buzhou thought that fat would be the best food to eat. बुझो ने सोचा कि चर्बी ही सबसे अच्छा खाना होगा. All the time, हर वक्त. कटोरी bowl of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food, isn't it? एक कटोरी का चर्बी एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वो ज़्यादा शक्ति या एनर्जी देते हैं, है कि नहीं? So he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda. Do you think he was right? तो उसके बाद उसने क्या किया कि बस चर्बी खाने लगे और जितना भी फ्राइड किया हुआ है वो सब खाना खाने लगे, जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, ऐसे चीज़ें खाने लगे वो. तो क्या वो सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट. नहीं, ऐसा नहीं है. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich food, and we may end up suffering from a condition called obesity. नहीं, ये सही नहीं है और ऐसा करने पर हम एक रोग मिल सकते हैं हमें जो कहलाते हैं obesity. 2.4 Deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain particular nutrient. एक बंदे को वो पूरा खाना मिल भी रहा हो, अच्छा खाना मिल भी रहा हो, मगर उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट ज़रूरतमंद होते हैं उसके लिए वो नहीं हो सकते हैं. If this continued over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. और अगर ये बहुत देर से चलता रहा तो उसको रोग लग सकता है. Deficiency of one or more nutrient can cause disease. डिफिशियंसी का मतलब है कुछ न्यूट्रिशन या शरीर में जितना भी गुण होना चाहिए उसका कमी होना, और वो कमी होने से हमें रोग लग सकता है. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. और अगर ऐसे ही रोग हमारे शरीर पे कुछ गुण कम होने की वजह से रोग हुआ तो उसको deficiency diseases बोला जाता है. If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. और अगर ऐसा रोग उसको लगा तो उसको क्या हो सकता है? वो मुंह फुला हुआ हो सकता है, पैर भी बड़ा होगा, मोटापे की तरह दिखने लगेगा वो, मगर असल में वो मोटापा नहीं, वो कुछ और है, वो बीमारी है. या फिर उसको डायरिया भी हो सकते हैं, उसका स्किन खराब हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना पिक्चर में वैसे. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. और अगर ऐसे ही
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी खाना खाता रहा तो उसका बढ़ना उसका फिजिकली शरीर का बढ़ना रुक जाएगा। ओके, कंप्लीटली एकदम रुक जाएगा। Such a person become very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. और ऐसे ही लोग ना बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो हिल भी नहीं पाएंगे। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorder. और ऐसे ही डिफिशियंसी बहुत अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से बहुत सी रोग लग सकते हैं या फिर कुछ और हो सकता है। सम ऑफ दिस आर मेंशन इन टेबल 2.3 और ऐसे ही टेबल 2.3 में मेंशन किया हुआ है। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। और ऐसे ही हर कोई डिफिशियंसी, हर कोई कमी की वजह से जो रोग होते हैं उसको रोका जा सकता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन। हमने इस चैप्टर में ये सवाल पूछा था कि इतने सारे खाने की प्रकार क्यों होते हैं और उनमें भी मिलजुल कैसे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल 2.3 सम डिजीजेस और डिसऑर्डर कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स, विटामिन ए मतलब डिफिशियंसी, उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ विजन। विटामिन ए की कमी की वजह से देखना, आँखों की रोशनी कमी हो सकते हैं। एंड सिम्टम्स, पोर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, और अंधेरे में कम दिखाई पड़ना और आँखों का रोशनी थोड़ा कम हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना, ये सब हो सकते हैं। विटामिन B1 वेरी वेरी, और वेरी वेरी में क्या होता है, वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। उसकी शरीर बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो ज़्यादा बारीक काम नहीं कर पाते हैं। विटामिन C, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील। और विटामिन C की कमी की वजह से क्या हो सकते हैं, मसूड़ों में से खून निकल सकते हैं और जितनी बार भी गाँव उसको हो तो वो ठीक होने में ज़्यादा टाइम लेगा। विटामिन D, रिकेट्स, इसमें क्या होता है, बोन्स बहुत नरम हो जाते हैं। और कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो सकता है, बोन्स और दांत उसमें डिके हो सकते हैं, उसमें सड़ सकता है। वीक बोन्स टूथ डिके, और ये जो हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं और इसमें दांत में भी दांत सड़ सकता है, इसमें कीटाणु लग सकता है। आयोडाइन में क्या होता है, गेटर होता है, और उसमें क्या होता है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन द चाइल्ड। उसमें गर्दन में, गले में एक स्वेल हो सकते हैं उसमें, और उसके बाद दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है, मतलब थोड़ा कम हो सकता है, कमज़ोरी हो सकते हैं दिमागी में। Distribution. This distribution we find ensures that our meal have a balance of the different nutrient needed by the body. और इसको देखकर हमें पता चलता है कि हमें हर एक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है और हमें लेना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू क्लास।